हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मनी एंड क्रेडिट। तो अब तक आप बहुत वेल वर्स हो चुके हो कि लोन क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या कंडीशंस एंड ऑल। बट फिर भी हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं एंड वी स्टिल देयर विद द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेस। अच्छा, फॉर्मल सोर्सेज यू नो दे आर बैंक्स एंड ऑल, एंड इनफॉर्मल सोर्सेज आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। तो फायदा क्या है इन दोनों सोर्सेज के? देखिए, करेंटली इन इंडिया द सिचुएशन इज एज सच, इफ आई टॉक who is having documents and what is the collateral asset you have. So if you go to rural area you will not find many people having their documentation क्योंकि थोड़ा literacy rate कम है ना, and then the collateral also are limited with the poor people. तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि formal sector gives loan to well and rich of section of the society. If I check, you in your textbook have a pie chart where they are telling the how much is the share of rich and well-to-do families from the formal sector. अब poor farmers, landless laborers, those who don't have document, those who don't have collateral, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. They have to go to the money lender या फिर informal sector. And this is one reason why the formal sector need to lend more. And that's why cheap and affordable credit is good for the development of a country. Reason is, if I have a plan in my mind and I need some money, if I go to a formal sector, good enough, less rate of interest, and the things could be better, hoping that they will be better. But then if I go to an informal sector, you remember the credit, if I miss out paying some EMIs, or this principal amount will be equivalent to the interest rate and I will not be able to pay that whole amount. I'll be in debt trap. तो अगर मेरे पास प्लान है भी तो मैं लोन नहीं लेता हूँ और वो प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ. And that's the reason why formal sector need to lend more, particularly in rural areas, so that their dependency from the informal sources reduce. आपको याद है हमने ये पढ़ा है कि how to protect worker. If you want to protect worker, you need to give loan to them during time of sowing. And how they can get this loan? To go to bank or the cooperative and get the loan. पर इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि you will not find banks and cooperatives everywhere. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. आपके पूरे चैप्टर का अगर मैं सही मायने में कॉन्सेप्ट कहूँ तो वो यही क्लियर हो जाता है कि why is that rural area or why most of the people in our country dependent on informal sector, because banks are not present everywhere in rural India. Apart from that, if banks are there, the procedure of getting loan is little cumbersome. Some people don't have documentation, some don't have collateral, तो ये सारे problems आ जाते हैं. इतनी ज़्यादा formalities हो जाती हैं that it's difficult to get loan. आप याद रखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू, केस स्टडीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन एग्जाम्स यू विल गेट केस स्टडीज. दे विल से so and so is a farmer, this much is the area of land he is owning, he goes to bank, the bank rejects the loan. Why? So you need to think what could be the reason. Moving ahead, अब हमें पता चल गया है कि बैंक्स होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए. चलो एक सिचुएशन देखते हैं. I am a landless labor, I don't have a land, I don't have a collateral asset, nor I have a document. Can I get a loan? Answer is no, I will not get the loan. But then if I want loan, is there any other solution for it? Because in a rural area, you know, women don't have these things. बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये होगा ही नहीं, तो वो कैसे लोन लेंगी? Then we go to a topic called self-help group, and this is for poor. Now सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर समझना है आपको तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं. आई थिंक सबसे आसान चीज़ एज पर मी, कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ गुड स्टूडेंट और एन एवरेज ऑल्सो, इज सेल्फ हेल्प ग्रुप. ओके, नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड सेल्फ हेल्प ग्रुप. हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव सीन अ किटी पार्टी? किटी पार्टी ऑर्गेनाइज होती होगी घर में, कहीं आपके मम्मी ऑर्गेनाइज करती होंगी या आप कहीं गए होंगे. तो सिंपली कहता हूँ, वो जो किटी पार्टी है ना, वही सेल्फ हेल्प ग्रुप है. अब वो रूरल एरिया में कैसी है वो मैं बता देता हूँ. तो चलिए पहले किटी पार्टी करते हैं. बस कुछ फीमेल्स आती हैं एक साथ, एक बिल्डिंग की सहेलियाँ, दोस्त या फिर रिलेटिव्स. दे पुल इन सम मनी, they pull that money and then
they will give it to someone who is in need. अब वो कैसा होगा, या तो सिंपली आई कैन से कि आई नीड दैट मनी सो दे विल गिव इट टू मी, और एल्स दे विल पुट माय नेम इन एन पॉट एंड देन आस्क समवन टू पिक अप द चिट. तो वो चिट निकालेंगे, चिट में आ गया मेरा नाम, तो वो पैसे हो गए मेरे. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वापस नहीं देने हैं. अगली दफ़ा ये जो पार्टी होगी वो मेरे घर पे होगी, फिर मेरा नाम उस चिट में नहीं होगा, बट आई हैव टू पे दैट अमाउंट वॉट एवर हैज डिसाइडेड बाय द ग्रुप, एंड देन द नेक्स्ट नेम विल कम. इस तरीके से फिर जिसके घर पे वो रखी है मीटिंग, वहाँ पर थोड़ा पार्टी शार्टी होगी, डिस्कशंस होंगे. तो फिर एक चीज़ याद रखिए, ये जो होता है इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इज सिंपल, द अमाउंट विच यू गेट इज लम सम, कैन बी यूटिलाइज्ड एट वंस. ठीक है, एट वंस इफ यू गेट दिस बिग अमाउंट यू कैन यूटिलाइज इन अ बेटर वे देन स्मॉल इंस्टॉलमेंट. तो ये फ़ायदा होता है इन किटी पार्टीज का. Same thing is self-help group, but in rural area. So what happens is, all the women in the village, not all, everyone whoever wants to wish this, they will come and sit together. Then they'll pull in the amount of money as per their capability, could range from 10 rupees to 100 rupees to 500 rupees. Then whatever the pulled in money is, they will give to the women who required. Whoever asked for, they will give it to them. Now, there are two conditions. One, some self-help group don't charge any rate of interest. Some do charge, but it's negligible, 1% or 2%. So that's how it helps these women to overcome their financial hardship. और इसका क्या फ़ायदा है? बहुत आसान से ये पैसे दे दिए जाते हैं, अगली बार वो फिर मिलती हैं, फिर वो पैसे पूल करती हैं, जो उन्होंने लिया है वो भी देते हैं. दिस इज़ हाउ दिस ग्रुप वर्क्स. एक और बहुत ज़रूरी चीज़, द होल डॉक्यूमेंटेशन इज़ डन, हु इज़ गिविंग हाउ मच and how much is paid off. So this documentation is done in one book or a diary, and then the money is pulled in. So if I need a loan, what these groups do, they go to the bank. Will the pool in money? So ये जो pooled in money है बेटा, this is my collateral asset. And the diary where I'm doing an entry and all can work as a documentation. Bank give you the loan. Now why bank gave you a loan? Because I got a collateral asset. I got the डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो कि ये लोग कहीं जाएंगे नहीं. अगर बैंक से लोन लिया है तो इतने सारे लोगों ने लिया है एंड वो रीपे करेंगे बिकॉज इतने ज़्यादा गारंटीड है. तो इस हिसाब से आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बन सकते हो और लोन ले सकते हो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोलेट्रल नहीं है, स्पेशली विमेन. पर सेल्फ हेल्प ग्रुप का और भी कुछ ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है, और वो फ़ायदा होता है, देखिए जब भी रूरल एरिया में दिस विमेन मीट एंड सिट, एक सोशल गैदरिंग में इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन, इम्प्रूवमेंट इन सोशल स्ट्रक्चर, इम्प्रूवमेंट इन द आइडियोलॉजी, थिंकिंग, ये सब देखा गया है. नाउ लिटरेसी रेट बढ़ने लगा है एंड दे टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एट देयर प्लेस. ये जो फैमिली अब्यूज़ है, दीज थिंग्स आर हाईलाइटेड, देन दे विल हैव द सोल्यूशन. तो इस तरीके से वुमेन को एक सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप. और हमेशा से सबसे मेन प्रायोरिटी ये रही है कि इन वुमेन्स की हेल्प की जाए. और आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क के तौर पे आप ये ले लीजिए कि देयर इज़ अ ग्रामीण बैंक. फाइंड इट आउट मोर अबाउट द ग्रामीण बैंक एंड द सक्सेस ऑफ द ग्रामीण बैंक. सो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ गिविंग लोन टू विमेन इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल. वो सबसे अच्छे अगर एम्प्लॉय होते हैं तो सबसे अच्छे रिपेयर भी होते हैं, सबसे अच्छे यूटिलाइज़र भी होते हैं. इसीलिए घर चलाने वाली लेडीज़ को माना जाता है, चाहे आप कितने भी पैसे ले आइए. सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट हाउ you will utilize your money, how you will get the money, how can credit help you, how can credit put you into a trap, and then what are the various ways through which you can apply for loans, and how we can improve the social structure of the society. Now, this is the chapter. It's an easy one. Please keep revising and keep smiling. I'll see you soon. Thank you so much.